हाँ, आपने पढ़ा कोर्स ऑफ ईसोफेगस? Yes, ma'am. बताओ। Ma'am, course of esophagus can be defined as dorsal to trachea till fourth cervical vertebrae, हम्म and then left to trachea till second thoracic vertebra, सेकंड नहीं, थर्ड। third thoracic vertebra, and then it again comes dorsal to trachea till tracheal bifurcation. यस And its course is right to aortic arch, यस and then it comes again to left, and a short transition is also observed towards dorsal side. ठीक है, DL, DL. Yes, ठीक है ma'am. ना? So it enters in then to the abdominal cavity by piercing the diaphragm, and the opening is called esophageal hiatus, and this opening is present left to the median plane. If we say that posterior mediastinum, the esophagus, before entering into the abdominal cavity, it is left to the median plane. DL. Lastly, esophagus is lying left to the median plane. ठीक है, अब ये तो हमने पढ़ा कोर्स ऑफ ईसोफेगस. Course of esophagus in relation to the trachea, then in relation to the structures of the mediastinum. Adjacent structures which are present during its entire course, right? So if we see that at its origin, the esophagus is lying dorsal to the trachea, right? So if we say the relationship at this point, then the esophagus is related ventrally to the cricoid cartilage. सही है? Ventrally, the esophagus is related to the cricoid cartilage, and dorsally, it is related with rectus, capitis, ventralis major muscle. ठीक है? Now, at the level of third or fourth cervical vertebra, it is coming left to the trachea. So now it is related. If we see, then medially it is related with the trachea. क्यों? क्योंकि ये trachea किस तरफ आ गया है? Left side आ गई है. Esophagus is now at the left side. So here it is related पर क्या आएगा? Muscles आएंगी. अच्छा, ये muscles क्या है? These are the muscles of the neck region which are present under the bodies of vertebrae. ठीक है? So here it is related superiorly to the left longus colli muscle. अब ये सब मसल के नाम आपने पहली बार सुने हैं. थोड़ा सा आप पलटिएगा, बुक पलटिएगा मेरे पढ़ाने के बाद, वहां देखना मसल्स ऑफ सर्वाइकल रीजन 24 मसल्स मेंशन है नेक रीजन की मसल्स. उसमें से ये वेंट्रल ग्रुप मसल्स में आप देखना रेक्टस कैपिटस वेंट्रलिस मेजर का नाम आएगा, लॉन्गस कोलाई का नाम आएगा. ठीक है, तो थोड़ा सा आपको आइडिया होगा चीजों का. यहाँ पर हम देखेंगे then the esophagus related superiorly to the left longus colli muscle and laterally to the structures present in carotid sheath. ठीक है, क्या समझ में आया? At the level of third or fourth cervical vertebra, esophagus is related dorsally to the left longus colli muscle and laterally to structures present in carotid sheath. So what are the structures present in carotid sheath? Anyone? Ma'am, vagosympathetic trunk, common carotid artery, and internal jugular vein. नहीं आ रही है? Yes, ma'am. हाँ बताओ. What are the structures present in carotid sheath? Ma'am, common carotid artery, sympathetic trunk, and jugular vein. Common carotid artery, vagosympathetic trunk, और कौन सी jugular vein? External jugular vein. External jugular vein. Ma'am, internal. Yes, internal jugular vein will be there. कल की क्लास अटेंड की थी आरती, जब मैं एक्सटर्नल जुगुलर वेन के बारे में बता रही थी आपको? Yes, ma'am, किए थे. है ना? कहाँ बताया था मैंने एक्सटर्नल जुगुलर वेन को? कौन सा फरो बोलते हैं उसको? मैम नेक रीजन में ही होती है मैम, मतलब दोनों साइड पाई जाती है एक्सटर्नल जुगुलर वेन. दोनों पाई जाती है एक्सटर्नल जुगुलर वेन?
दोनों साइड? मैम दोनों साइड, यस मैम दोनों साइड। हाँ, दोनों साइड तो होगी। कहाँ पर बोलते हैं ना, कुछ टर्मिनोलॉजी बोलते हैं ना कि इट लाइंग इन दिस फरो, जुगुलर वेन इज लाइंग इन दिस फरो, मैम इन द नेक रीजन। जुगुलर फरो। हाँ, जुगुलर फरो, कल चर्चा हुई थी ना, जुगुलर वेन इज लाइज इन जुगुलर फरो इन नेक एरिया, एंड जुगुलर फरो इज फॉर्म बाय द between two muscles, brachiocephalicus and stenocephalicus. इन दो मसल्स के बीच का जो गैप क्या कहें, तो धसी होती है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा स्पेस है, एडजेसेंट स्ट्रक्चर है, वहीं से ही जुगुलर वेन भी गुजर रही है, एंड दैट एरिया इज कॉल्ड जुगुलर फरो। ठीक है, तो हम कहां से कहां पहुंच गए? वी आर डिस्कसिंग अबाउट लाइक दिस, later it is related to the carotid sheath, or you can mention all the structures. You can write the name of all the structure like common carotid artery, vagosympathetic trunk, and internal jugular vein. Of which side? अच्छा, esophagus किस तरफ है अभी? यहाँ पर किस तरफ की इससे रिलेटेड होगा? लेफ्ट साइड की राइट साइड? कैरोटिड शीथ प्रेजेंट इन लेफ्ट साइड और राइट साइड? हर्षिका बताओ भाई, carotid sheath, it is a paired structure or unpaired structure? Harshika? Yes, ma'am. Carotid sheath, whether it is a paired means present on both the side, or it is unpaired present only on one side of the neck. Ma'am, paired. It should be Paired, paired. yes. So the esophagus will be related with which side of structures present in carotid sheath? Which side? Left or right? Ma'am, left, I think. Yes, left, yes. Because it is lying in the left side. So that is why it is related with the left carotid sheath. ठीक है? So this is now clear. Now, अभी इसके बाद the esophagus will enter into the thoracic cavity. So in thoracic cavity, there are three spaces: cranial mediastinum, middle mediastinum, and caudal mediastinum. If we talk about the relationship of esophagus in the cranial mediastinum, ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे? Yes, हमने क्या पढ़ा था? DLD पढ़ा था, है ना? DLD, फिर R आता है. राइट कहां पर पहुंचता है? एरोटिक arch. When the aortic arch is pushing the esophagus, then we say that the esophagus is right to the aortic arch. ठीक है ना? तो cranial mediastinum, esophagus related with the trachea. Dorsally. Dorsally, yes. Means esophagus is lying dorsal to the trachea. Trachea के ऊपर होगी esophagus, ठीक है ना? Esophagus कहाँ होगी cranial mediastinum में? Dorsal to the trachea. एक चीज. अब थोड़ा सा आपको रिकॉल करना है चीजें. जब मैडम ब्रेकियोसेफेरिक ट्रंक आपको पढ़ा रही थी, तो उन्होंने यहाँ पर लेफ्ट सबक्लेवियन, राइट सबक्लेवियन, याद आ रहा है? ब्रांचिंग बताई होगी. बोल ही नहीं रहा है कोई. लेफ्ट सबक्लेवियन, राइट सबक्लेवियन, ये आर्टरीज का नाम सुना है? यस मैम. सुना होगा ना, है ना? और ये नर्व्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, ये भी सुना होगा. ब्रेकियल प्लेक्सिस सुना है कि नहीं? ब्रेकियल प्लेक्सिस, हाँ एग्जाम में नहीं पूछा था. हाँ, ब्रेकियल प्लेक्सिस बताओ. नहीं सुना ब्रेकियल प्लेक्सिस? मैम सुना है. सुना है ना? एग्जाम में आया तो था. क्या आया था एग्जाम में? ब्रेकियल प्लेक्सिस नहीं आया था क्या? मैम फोर लिम्ब को सप्लाई करती है उसकी नर्व. ब्लड सप्लाई आया था, है ना? फोर लिम्ब का नर्व सप्लाई नहीं आया था, है ना? अच्छा, तो हम कहाँ थे? हम थे यहाँ पर. हमने लिखा हुआ है मिडिल मीडियस्टाइनम, पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम. एंटीरियर मीडियस्टाइनम मैंने नहीं लिखा हुआ है क्योंकि बहुत डिटेल में जा रहे थे उसमें. यहाँ अगर हम एंटीरियर मीडियस्टाइनम में अगर पूछता है कोई भी, इसोफेगस रिलेटेड विद द ट्रैकिया, वेंट्रली मतलब, अब देखो आप कहाँ किसके सेंस में बोल रहे हो कि आप बोलोगे मेरे घर के बाजू में उसका घर है या उसके घर के बाजू में मेरा घर है, तो ये दोनों सेंटेंसेस में अंतर आ जाता है. तो आपका सेंटेंस कैसा है, आप बोल कैसे रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना? सो इन क्रेनियल मीडियस्टाइनम the ventrally the esophagus related with the trachea,
dorsally with the longest colli muscle, and root of brachial plexus and costocervical trunk. कोस्टोसर्वाइकल ट्रंक का नाम सुना होगा, सबक्लेवियन की ब्रांचेस है, ठीक है। तो इतना अगर आप बोल दिया मतलब हाँ ठीक, क्रेनियल मीडियस्टाइनम. नाउ रिलेशनशिप ऑफ इसोफेगस एंड मिडिल मीडियस्टाइनम, you all know middle mediastinum मतलब heart is situated over here. So here the esophagus related at its left with the aortic arch, ठीक है ना, and dorsally with longus colli muscle, ठीक है ना। मतलब esophagus के लेफ्ट में क्या होगा, aortic arch होगा, और ऊपर की तरफ क्या होगा, longus colli muscle होगा, ठीक है। Now in posterior mediastinum, अच्छा जब हमने लंग्स पढ़ा था तो हमने लंग्स में भी याद करो इंप्रेशन पढ़े थे, लंग्स में इंप्रेशन पढ़ा था ना, ईसोफेजियल इंप्रेशन इन द मीडियस्टाइनल सरफेस और मीडियल सरफेस ऑफ लंग. हियर आल्सो अब हम क्या ईसोफेगस की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। सो ईसोफेगस रिलेटेड विद द राइट एंड लेफ्ट लंग ऑन करस्पॉन्डिंग साइड्स. करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब ईसोफेगस, left surface of esophagus related with the left lung and the right surface of esophagus related with the right lung. तो दोनों लंग में इंप्रेशन मिलेगा esophagus का, ठीक है, in the posterior mediastinum. फिर इसके बाद it is also related with the vagus nerve. vagus nerve का कोर्स अगर याद करो तो dorsal trunk और vagal trunk, dorsal and ventral vagal trunk अगर याद आ रहा है, superior and inferior vagal trunk. Superior lying to the dorsal to the esophagus and inferior is lying ventral to the esophagus. Then after they comes out in abdominal cavity through esophageal hiatus along with esophagus. अगर याद आ रहा हो तो vagus का भी the esophagus is also related with the vagal trunk and posterior mediastinum. तो दो चीजें हमने पढ़ ली, एक तो lungs relations है, दूसरा vagus से relationship है। फिर तीसरा क्या है, इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द मीडियास्टाइनल लिम्फ नोड डॉर्सली. अब मीडियास्टाइनल लिम्फ नोड्स का यहाँ यूटिलिटी है, इंपॉर्टेंस है, मैंने शायद उस समय भी पढ़ाया था जब मैं लिम्फ नोड्स पढ़ा रही थी, तब भी मैंने बताया था. इफ देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ दीज लिम्फ नोड दे मे कंप्रेस द ईसोफेगस, ठीक है ना, ईसोफेगस को कंप्रेस कर सकते हैं, उसका दबा सकते हैं उसकी वॉल को, एंड दैट मे हिंडर द प्रोसेस ऑफ इरेक्टेशन, ठीक है ना। तो इरेक्टेशन आपको सबको पता है ना। तो फूड तो एक फिर भी इंगल्फ हो जाएगा, लेकिन गैसेस को इरेक्टेशन दैट इज द पैसिव मोड, सो इट रिक्वायर द कंप्लीट ल्यूमेन. इफ देयर इज एनी हिंड्रेंस इन द ल्यूमेन द इरेक्टेशन विल बी अफेक्टेड. सो हियर ये मीडियास्टाइनल लिम्फ नोड का यूटिलिटी है. अब हम क्या चर्चा कर रहे हैं, दिस इज द ऑल रिलेशनशिप ऑफ ईसोफेगस with its entire course, ठीक है ना। हमने अभी तक आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो, हमने क्या पढ़ा, सर्वाइकल कोर्स ऑफ ईसोफेगस पढ़ा और थोरेसिक कोर्स ऑफ ईसोफेगस पढ़ा. हमने एब्डोमिनल कोर्स ऑफ ईसोफेगस क्यों नहीं पढ़ा? एनीवन कैन टेल मी? मैम एब्डोमेन में एब्सेंट होती है. एब्डोमेन में क्या होती है? एब्सेंट होती है ईसोफेगस. हाँ एब्सेंट, हाँ बोल सकते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं हम, as soon as it enters in abdomen it opens into the stomach, ठीक है ना. तो as such जो course of esophagus, abdominal course of esophagus, that is means negligible. negligible क्यों? क्योंकि diaphragm, esophageal hiatus is present in the diaphragm and rumen reticulum, जो मैंने अभी बताया था ना, कल बताया था, atrium ventriculi की चर्चा की थी. यहाँ पर it enters esophageal hiatus of diaphragm, passing through this immediately terminate मतलब जैसे ही abdominal cavity में enter हुआ, and it terminate on dome shape area between rumen and reticulum called atrium ventriculi, ठीक है ना. So we can say that practically no abdominal part of esophagus is present in case of ruminant. हम अभी डॉग और हॉर्स पढ़ने वाले हैं, वहां पर सिनेरियो अलग होगा. अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम रूमिनेंट्स का पढ़ रहे हैं. सो इन रूमिनेंट्स दिस rumen reticulum is very close in a position with the diaphragm, and as soon as esophagus comes out through esophageal hiatus, it opens into the
atrium ventriculi, right? So that is why we only discuss the cervical part of esophagus and thoracic part of esophagus. Clear? अच्छा, अब इतना सबको क्लियर है कि नहीं ये बताओ, रिलेशनशिप ऑफ द इसोफेगस एंड कोर्स ऑफ इसोफेगस, ये दो चीजें क्लियर हो चुकी हैं? कोई कंफ्यूजन इतने में? एनी कंफ्यूजन अप टू हियर? नो मैम। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल कंडीशन और अप्लाइड पार्ट। ठीक है, अप्लाइड पार्ट क्या है? इसोफेगस हमने कोर्स जान लिया, इसोफेगस का एनाटॉमी जान ली हमने इसोफेगस का। ठीक है, अब हमको बताना होगा if there is any affection of esophagus, then where we have to approach, what should be the anatomical site at that part. So usually we see that whenever animals are wandering here and there, usually हमने देखा होगा सब्जी मंडी में जानवर घूमते रहते हैं, ठीक है, और यहाँ मुंह मारते, वहां मुंह मारते, यहाँ से एक भगाता है, डंडा मारता है, दूसरा वहां से डंडा मार रहा है जानवर को, इधर से उधर जानवर भाग रहा है, वो खाने की कोशिश में है. Sometimes it happens that a big object engulfed by the so sometime if the big object like watermelon, ठीक है ना, a big cabbage, it is engulfed by the animal and without chewing it just engulf that part. So sometime it may happen that it block the esophagus, that is called choke. The condition is called choke. ठीक है, so अब क्या करें, अब इसोफेगस में जाके वो फंस गया है. अब इसोफेगस में कहाँ जाके फंसा है? यूजुअली सर्वाइकल पार्ट में ही जाके फंसता है, ठीक है ना, सर्वाइकल पार्ट में ही जाके फंसेगा, क्योंकि अब सर्वाइकल पार्ट में वो बिग स्ट्रक्चर जाके फंसा हुआ है. नाउ यू हैव टू रिलीव द एनिमल. अब इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हर कोई क्या करता है, वहां मसाज करता है, उसको पीछे पुश करने की कोशिश करता है कि पीछे चला जाए या आगे आ जाए, दो में से कुछ भी हो. एनिमल को ऑयल पिलाया जाता है, पैराफिन ऑयल पिलाते हैं, ठीक है ना, ताकि लुब्रिकेशन हो और वो बाहर आ जाए या अंदर चला जाए. इफ सच things are not fruitful, if such things are not fruitful and animal is still suffering from choke, then what to do? Then surgery has to be performed, ठीक है ना, then surgery has to be performed over here. और फिर जब भी सर्जरी परफॉर्म होती है, इंतजार करता है हर कोई, अब एक दिन देख लिया, 2 दिन देख लिया, अब तो वो फंसा ही हुआ है, वो निकल ही नहीं रहा है, अंदर जा ही नहीं रहा है, ना बाहर आ रहा है. नाउ लास्ट ऑप्शन सर्जरी. अब सर्जरी करना है तो अब हमको पता होना चाहिए इसोफेगस, वेयर द इसोफेगस सिचुएटेड एंड व्हाट इज द सर्जिकल एनाटॉमी ऑफ इसोफेगस. ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा कल मैं जब डिस्कस कर रही थी जुगुलर फरो के बारे में भी डिस्कस कर रही थी आप लोगों से, और ये भी बोल रही थी कि यही जुगुलर फरो भी है बड़ा. आप लोग जब भी इंट्रावीनस इंजेक्शन दे रहे हो या ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में थोड़ा कॉशियस होके करना है, because esophagus is also lying over here in the left side. ठीक, तो अब जब हम esophagus को अप्रोच करने जाएंगे तब हम we have to be cautious that jugular vein is also lying in this side. ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, we jugular vein का जो कोर्स है मैंने कल बताया था आप लोगों को, ये आप डायग्राम देख रहे हो, है ना, डायग्राम देख रहे हैं यहाँ. Here is the presence of trachea. Here is the trachea. Cervical part. दिख रहा है बच्चों? बोर्ड दिख रहा है? Yes, ma'am. Here is the trachea, right? And esophagus is traversing. It is crossing the trachea, lying left to the trachea. Here it is lying left to the trachea. ऐसे, ठीक? और जो jugular vein है, that jugular vein is also lying over here. ठीक, इस तरफ बाहर की तरफ जुगुलर वेन. एंड हियर द मसल्स आर, मेन मसल्स आर ब्रेकियोसेफेलिकस एंड स्टेनोसेफेलिकस. और मैंने आपको बताया था
आपको बताया था मैंने, जुगुलर फरो इज फॉर्म बाय बिटवीन ब्रेकियोसेफेलिकस एंड स्टेनोसेफेलिकस। ऊपर वाला मसल कौन सा मसल है? ब्रेकियोसेफेलिकस है। दिस मसल इज ब्रेकियोसेफेलिकस and this muscle is sternociphelicus, and here is lodgement of external jugular vein. Here is lodgement of external jugular vein. Whenever surgery has to perform, पहली लेयर क्या होगी? स्किन होगी। आपने स्किन में इंसिजन देना है, स्किन में इंसिजन देना है, and you have to be careful about this external jugular vein. Either the superior border of jugular furrow or inferior border of jugular furrow. You prefer this one. जिससे क्या होगा? यहाँ इंसिजन अगर आपने दिया तो स्किन इंसिजन देंगे, देन मसल, उसके बाद आप सेपरेट कर लेंगे एक साइड हुक से, आप उसको सेपरेट करेंगे, जुगुलर वेन को एक तरफ कर देंगे। जुगुलर वेन should not be in any case, there should not be any prick or any cut on jugular vein. इसको कॉन्शियसली आपने एक साइड कर देना है। अब आपको अप्रोच करना है ईसोफेगस को। So either the superior or inferior border of jugular furrow is the site of choice for esophagotomy. This is called cervical esophagotomy. याद करो जब हम टॉमी वर्ड पढ़ रहे थे, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? टॉमी, ट्रैकियोटॉमी, ट्रैकियोटॉमी नहीं पढ़ा पाई लगता है। ट्रैकियोटॉमी पढ़ा पाई हूँ? ट्रैकियोटॉमी नो मैम, हाँ नहीं पढ़ा मैम। हाँ, ट्रैकियोटॉमी नहीं पढ़ा। टॉमी वर्ड तो सुना है ना, और कहाँ और क्या पढ़ा है हमने? डेस्मोटोमी। हाँ, डेस्मोटॉमी पढ़ा है। उस डेस्मोटॉमी में लिगामेंट को कट करते हैं। फिर हम पढ़ रहे थे सलाइवरी ग्लैंड पढ़ा हमने, ये सब पढ़ा। चलिए ठीक है, टॉमी एंड एक्टोमी, टू वर्ड्स आर देयर, ठीक है? TOMY, टॉमी मीन्स गिविंग an incision over the wall of that particular organ, that is called tomy. Ectomy means, if we say splenectomy, nectomy means ECTOMY, ectomy word is there, then that means we are removing the portion of that organ also. Splenectomy का मतलब क्या है? आपने स्प्लीन को कट करके अलग कर दिया है। और टॉमी का मतलब क्या है? ओनली इफ देयर इज टॉमी वर्ड, दैट मींस यू आर ओपनिंग द वॉल ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गन। सो यू मस्ट डिफरेंशिएट दीज टू टर्म, टॉमी एंड एक्टोमी, ठीक है? अब मैं यहाँ क्या डिस्कस कर रही हूँ? आई एम डिस्कसिंग अबाउट ईसोफेगोटॉमी। ईसोफेगोटॉमी मींस we have to approach the esophagus and we make an incision over the wall of esophagus, right? So here we approach the esophagus. अब cervical course अब हमने देखा है, third or fourth thoracic, cervical vertebra, at the level of that the esophagus is lying left to the trachea, and during its entire course we can approach the esophagus at its left side, ठीक है ना? हम कहाँ से अप्रोच करेंगे esophagus को? लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे। One incision over the superior or inferior border of jugular furrow, and then we explore the esophagus. धीरे क्या करेंगे? साइड करेंगे, and then we reach to the esophagus. अब esophagus, reach the esophagus, then we see that either the ball और जो भी स्ट्रक्चर जो फंसा हुआ है esophagus में. So now we will make incision according to the strength of the wall of the esophagus. उसके accordingly incision दिया जाएगा। सर्जरी में फिर पढ़ाई जाएंगी, ठीक है? लेकिन अभी क्या आपने देखना है? आपको एनाटॉमिकल साइड बताएंगे। Here we will focus on anatomical side. और जब आप सर्जरी में जाएंगे then they will focus on procedure, suture, anesthesia. उस पे आप सारी चीजें वहां डिस्कस होंगी। यहाँ तो मैं केवल एनाटॉमिकल साइड बता रही हूँ आपको कि दिस शुड बी द एनाटॉमिकल साइड इफ यू वांट टू परफॉर्म द सर्वाइकल ईसोफेगोटॉमी, ठीक है? समझ में आया? आ गया मैम। आया समझ में, है ना? Either the superior border of jugular furrow or inferior border of jugular furrow, this is the site of incision, ठीक है ना? और आपको ऊपर से ही दिखेगा जो भी फंसा हुआ मांस है, that will be appear from externally also,
तो आप वहीं उसी एरिया को अप्रोच करोगे। ईसोफेगस तो इतना लंबा एरिया है, पूरा थोड़ा ना काटोगे, यू हैव टू अप्रोच एट दैट साइड, ठीक है ना। चलिए, तो दिस इज कॉल्ड ईसोफेगोटॉमी। तो दिस इज सर्वाइकल ईसोफेगोटॉमी। तो सर्वाइकल ईसोफेगोटॉमी कैन बी परफॉर्म इन फील्ड कंडीशन। Now there is thoracic course of esophagus also. If you want to perform thoracic esophagotomy, so whether it is feasible or not, thoracic esophagotomy करना है तो ये easy जाएगा कि थोड़ा complicated होगा? Complicated. बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड होगा। क्यों? क्योंकि अब जैसे आप हार्ट सर्जरी पढ़ते हैं, पढ़ते क्या सुनते हैं, या मतलब अब तो इतना कॉमन हो गया है बाईपास सर्जरी, तो उसमें भी हम क्या देखते हैं, देयर इज रिब रिसेक्शन, मतलब रिब को काटते हैं, पहले रिब को काटेंगे फिर हार्ट को अप्रोच करते हैं। अब ईसोफेगस भी कहाँ पर है? ईसोफेगस इज आल्सो लाइंग इनसाइड द thoracic cavity, so now you need to resect the rib also, and once you resect the rib, the lung will collapse, so you need positive pressure ventilation to maintain the life of animal, then you can perform the surgery, and after that there should be all the thing rehabilitated. मतलब समझ में आया मेरा? सर्वाइकल ईसोफेगोटॉमी सिंपल एनेस्थीसिया देके और आप कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा नीड, बट इफ यू वांट टू परफॉर्म thoracic esophagotomy, then you need positive pressure ventilation system because you are going to open the thoracic cavity, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ ईसोफेगस के बारे में। एक तो होता ट्रैकियोटॉमी और ट्रैकियोस्टॉमी नहीं पढ़ा पाई मैं आप लोगों को। ट्रैकियोस्टॉमी वर्ड सुन लीजिए, देखो दो वर्ड मैंने बोला, ट्रैकियोटॉमी एंड ट्रैकियोस्टॉमी, STOMI। ट्रैकियोटॉमी का मतलब क्या है? वही चीज जो अभी ईसोफेगोटॉमी में बोला, यू आर कटिंग और मेकिंग एन इंसिजन ओवर द वॉल ऑफ ट्रैकिया, दैट इज ट्रैकियोटॉमी, ठीक है ना। कब जरूरत पड़ेगी? ट्रैकियल रिंग्स का फ्रैक्चर हो गया है, कोई ट्यूमर है, गैंग्रीन है, ठीक है ना, any nail or needle is piercing at that part, so in such condition you need tracheotomy. तो दूसरा है ट्रैकियोस्टॉमी। ट्रैकियोस्टॉमी बहुत ह्यूमन में भी बड़ा कॉमन है। ट्रैकियोस्टॉमी क्या होता है कि when the larynx get collapsed, तो अब क्या है, हाँ, तो अब क्या ट्रैकियोस्टॉमी का मतलब क्या है? when the respiration, normal respiration is not feasible, ठीक है ना, मतलब एनिमल की लाइफ के ऊपर बन पड़ी है कि अगर अब उसको रेस्पिरेशन नहीं मिला तो एनिमल विल डाई, ठीक है ना। क्यों? इफ इन सम कंडीशन, आपने सुना होगा ना, बोलते लेरिंग्स पैरालाइज हो गया या ये एरिया की मसल पैरालाइज हो गया, तो अब क्या है, वो सांस नहीं ले पा रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है, तो इस इन सच कंडीशन नाउ व्हाट इमरजेंसी इज रिक्वायर्ड? Now you need to cut the trachea and make an opening, making a shunt to the trachea. ये आप लोगों ने, ये ह्यूमन में भी बड़ा यूजुअली देखा जाता है when there is collapse of muscles of larynx या respiration जो है वो ब्लॉक हो गया है, तो क्या है, इमरजेंसी में क्या करेंगे? इंट्यूबेशन भी पॉसिबल नहीं है, करेंगे ना तब, या तो ट्रेकियल इंट्यूबेशन हो, आप बाहर से ट्यूब डालो, देन बाहर से रेस्पिरेशन चलेगा, या फिर क्या होता है कि एक आपने वो लिया हुआ है, पाइप लिया है और बिटवीन टू ट्रेकियल रिंग्स यू मेक वन इंसिजन एंड इंसर्ट दैट पाइप। तो लंग तो काम कर रहे हैं, लंग काम कर रहे हैं, है ना, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन तो चल रहा है, तो अब वो काम कहां से बाईपास हो गया? यहाँ से बाईपास हो गया, नीचे से जो नेजल नॉस्ट्रल के थ्रू काम चल रहा था, यहाँ का सिस्टम बाईपास करके आपने यहाँ डायरेक्ट ट्यूब डाल दिया। दैट इज कॉल्ड ट्रैकियोस्टॉमी, मेकिंग अ टेम्परेरी बाईपास टू द ट्रैकिया, ठीक है ना, यू आर मेकिंग टेम्परेरी बाईपास, ठीक है, मेकिंग इंसर्टिंग अ ट्यूब by cutting the trachea between two tracheal rings and inserting a tube so that the external respiration will be possible. समझ में आई मेरी बात? ट्रैकियोस्टॉमी जो थोड़े आप लोगों को बहुत देखने मिलेगा, बफेलो में बड़ा कॉमन है,
हेमरेजिक सेप्टिसीमिया, गलघोटू, सुना है नाम किसी ने? यस मैम। गलघोटू का नाम सुना है? यस मैम। अब पढ़ोगे आप लोग, आगे चल के पढ़ोगे। हेमरेजिक सेप्टिसीमिया ऑल्सो कॉल्ड गलघोटू। गलघोटू नाम जैसा है, गलघोटू मतलब गला घोंटने वाला, ठीक है। बड़ा ही मतलब एक्यूट डिसीज है ये। एक्यूट डिसीज मतलब एनिमल 2 से 3 दिन में एनिमल कोलैप्स हो जाएगा, पता ही नहीं पड़ेगा अगर टाइमली ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ, ठीक है। समटाइम्स जो हेमरेजिक सेप्टिसीमिया में क्या होगा, यहाँ पर एट द एरिया ऑफ ट्रैकिया देयर इज स्वेलिंग एज वेल एज accumulation of mucus so that the respiration is not feasible, and that is why the animal will die later on, ठीक है। To have a time to make animal to survive, usually tracheostomy has to be performed for maintaining the life of the animal, ठीक है ना। मतलब अब आपके पास टाइम बहुत कम है, एक्यूट डिसीज है, अगर आपने ट्रैकियोस्टोमी नहीं किया, अगर एनिमल ब्रीदिंग स्टॉप हो गया, देन एनिमल विल डाई। So to make survival of the animal, you make this temporary opening in the trachea, that is called tracheostomy। और बहुत कॉमन है बफेलो में हेमरेजिक सेप्टिसीमिया का बड़ा केसेस देखने को मिलते हैं। तो फील्ड में ये डॉक्टर्स को बड़ा करना पड़ता है, अगर थोड़ा सा लग रहा है कि अब ये जानवर चला जाएगा, मर जाएगा, अगर हमने ट्रैकियोस्टोमी नहीं किया। तो आई थिंक नाउ आपको समझ में आ गया होगा, ईसोफेगोटोमी, ट्रैकियोटोमी, ट्रैकियोस्टोमी। नाउ कंपैरिजन बिटवीन स्पीसीज, ठीक है। ये तो रिलेशनशिप ऑफ ईसोफेगस चला। नाउ इन बिटवीन स्पीसीज कंपैरिजन। अच्छा, अभी एक चीज छूट गया बताने का, wall of esophagus, how structure of esophagus is comprised of। कोई भी ट्यूबुलर ऑर्गन है तो कितनी लेयर्स होंगी उसमें, हिस्टोलॉजिकली अगर हम बोले। any tubular organ has how many layers? हाँ। अंकित बताओ, आप बताओ अंकित। 3 लेयर होनी चाहिए। 3 लेयर्स कौन सी? मैम जो भी एक कोई भी वेसल्स के लिए होती है ना मैम, कोई भी टीबिया, इंटीमा एंड मीडिया एंड एक और होती है मैम, कुछ आइडिया नहीं है ज्यादा, बट मुझे हाँ नहीं, आप सही बोल रहे हो, इंटीमा मीडिया वर्ड तो सही बोल रहे हो आप। और थोड़ा याद करो, ये तो बहुत पढ़ा था आप लोगों ने, नीट में भी पढ़ा होगा 4 लेयर्स के बारे में। यस मैम। यस मैम। हाँ मैम सिरोसा बोलो। सेरोसा, मस्कुलरिस और म्यूकोसा म्यूकोसा। हाँ, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, ट्यूनिका मस्कुलरिस और सिरोसा, है ना। यस। अंदर से बाहर की तरफ। Any tubular organ is comprised of 4 layers: mucosa, submucosa, tunica muscularis and serosa, ठीक है। अब मुझे बताओ, कोई भी बताओ, esophagus is lying in the neck region, ठीक है ना, नेक रीजन। तो जो ट्यूनिका सिरोसा हम बोल रहे हैं, आउटर मोस्ट लेयर बोल रहे हैं ट्यूनिका सिरोसा, तो इसके केस में क्या बोलेंगे हम, या सिरोसा ही बोलेंगे कि कुछ और बोलेंगे यहाँ पर नेक एरिया में? ट्यूनिका एडवेंटिशिया। बिल्कुल सही, ट्यूनिका एडवेंटिशिया बोलेंगे हम, सिरोसा नहीं बोलेंगे। क्यों? सिरोसा तब बोलते हैं when it is lying in a serous cavity, in a cavity like peritoneal cavity, pleural cavity, pelvic cavity. The organs which are present in these cavities, the outermost layer is called tunica serosa. But here in case of esophagus, it is present in neck region, which is not any serous cavity, so that the outermost layer will be termed as tunica adventitia rather than tunica serosa, right? तो अब एक लेयर तो कंफर्म हो गई, आउटर मोस्ट लेयर इज ट्यूनिका एडवेंटिशिया। नाउ इसके बाद कौन सी लेयर आती है? ट्यूनिका मस्कुलरिस आती है, ठीक है ना। ट्यूनिका मस्कुलरिस एज सच है क्या?
मस्कुलरिस जैसा इसका नाम है, मस्कुलरिस मींस मसल बंडल्स मस्ट बी प्रेजेंट ओवर हियर। और मसल बंडल का कुछ अरेंजमेंट होता है ना, अरेंजमेंट होता है ना मसल बंडल्स का। यस मैम, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल। हाँ, इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, है ना। तो here also there will be the arrangement of in tunica muscularis there are two arrangement of muscles, inner circular outer longitudinal। इसके बाद नेक्स्ट लेयर कौन सी आती है, सब म्यूकोजा आती है। सब म्यूकोजा, सब म्यूकोजा क्या है, सब म्यूकोजा मतलब म्यूकोजा के नीचे वाली लेयर को बोला है सब म्यूकोजा। क्या होती है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू लेयर होगा सब म्यूकोजा। यहाँ पर नर्व प्लेक्सस मिलेंगे, यहाँ पर ब्लड वेसल्स मिलेंगी, ठीक है ना, और ग्लैंड्स मिलेंगी इन एरियाज इन ऑर्गन्स वेयर ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। तो ईसोफेगस में भी जो ग्लैंड्स होंगी वो कहां पर होंगी, सब म्यूकोजा में होंगी। ईसोफेजियल ग्लैंड्स बोलेंगे उनको, क्या बोलेंगे, ईसोफेजियल ग्लैंड्स बोलेंगे। दे आर प्रेजेंट इन सब म्यूकोजा। हियर there will be the presence of nerve plexus, blood vessels, right? So tunica adventitia, then tunica muscularis, then tunica submucosa। अब tunica mucosa एक बार और शायद पहले डिस्कशन हुआ है, again comprised of three structure, that is epithelium, lamina propria and lamina muscularis। याद आ रहा है, mucosa is again comprised of three component, that is epithelium, lamina propria and lamina muscularis, right? So which type of epithelium is present in esophagus? Which type of epithelium? Stratified. columnar epithelium, simple columnar epithelium, slated। यदराम क्या बोल रहे हो, यदराम कॉलमनार मिलेगी क्या? मैम columnar, हाँ नहीं, yes मैम। कॉलमनार नहीं मिलेगी। स्क्वामस में non keratinized stratified epithelium। हाँ, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। एक महत्ता की नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ हमको अंतर मिलेगा, किसमें, डोमेस्टिक में मिलेगा अंतर, लार्ज रूमिनेंट्स में। याद करो, मैंने एक सेंटेंस देखो, हमको मैंने बहुत पहले एक सेंटेंस आपको बोला हुआ था, the epithelium in ruminant starting from oral cavity up to omasum is which type? Stratified। Stratified। और किस टाइप की स्ट्रेटिफाइड, केराटिनाइज्ड की नॉन केराटिनाइज्ड? Keratinized। बिल्कुल सही, बिल्कुल हाँ। सबसे स्टार्टिंग में हमने एक सेंटेंस बोला हुआ था, the epithelium in ruminants starting from oral cavity, यहां से शुरू करेंगे ओमेजम तक जो लाइनिंग मिलने वाली है वो स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड मिलने वाली है। अगर बुक में भी देखेंगे तो घोष में लिखा हुआ है स्ट्रेटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम लिखा हुआ है, बट इट इज केराटिनाइज्ड। इन केस ऑफ ruminant it is keratinized, of course in other species it is stratified non keratinized like dog, horse, pig। in these animals the epithelium is non keratinized type, ठीक है। तो ईसोफेगस में किस टाइप की एपिथेलियम मिल गई हमको, अब यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। यूजुअली स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम ही पूछते हैं, लेकिन यहाँ हम, ठीक है। अब mucosa of esophagus is folded, longitudinal folds are present। folded मतलब क्या है, आपने भिंडी देखा है, भिंडी सभी ने देखा है, भिंडी लेडी फिंगर। उसको जब हम कट करते हैं, एक तो या तो आप लेंथ वाइज कट करिए या क्रॉस सेक्शन करिए, ठीक है। अभी हम लेंथ वाइज पहले सेक्शन करके देखते हैं। अगर लेंथ वाइज हम सेक्शन करेंगे भिंडी का, तो हम क्या देखते हैं, अंदर क्या है, फोल्डेड है, मतलब एक लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स मिलेंगे आपको इस टाइप से। इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लिया, किसका, भिंडी का। यू विल सी दैट देयर आर स्ट्रिप्स,
lengthwise strips which are making here divisions, ठीक है ना, अंदर. और अगर क्रॉस सेक्शन लेंगे तो कैसे दिखेगा? इस टाइप से भिंडी आपको मिलेगी if you take the cross section अंदर, है ना. So esophagus is also having longitudinal folds of mucosa. So here we see if in normal condition that we see the mucosa is folded if you see the cross section, and if you see the longitudinal section, the longitudinal folds of mucosa will be observed in esophagus, and these folds get stretched when we are eating the food. When we are swallowing, the esophagus become dilated, so these folds become disappeared. Otherwise there are presence of folds of mucosa in wall of esophagus. बात समझ में आ रही मेरी? जब भी आप esophagus देखेंगे, मतलब ऑर्गन देखेंगे, तो आपको समझ में आएगी ये चीज जो मैं आपको अभी बता रही हूँ. ठीक है. अब हम कहाँ थे? म्यूकोजा में थे. हमने ट्यूनिका मस्कुलरिस पढ़ा. अच्छा ये मुझे बताओ, ट्यूनिका मस्कुलरिस किस टाइप की मसल्स होती है? ट्यूनिका मस्कुलरिस, वेदर स्मूथ मसल और स्ट्राइटेड मसल, व्हिच टाइप ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट इन ट्यूनिका मस्कुलरिस? ऑर्गन्स स्मूथ. यस, अगर ट्यूनिका मस्कुलरिस की हमने चर्चा की है, दैट मींस स्मूथ मसल्स मस्ट बी प्रेजेंट ओवर दी है ना. बट इन केस ऑफ esophagus, the tunica muscularis is striated type. Striated, ठीक है ना. Tunica muscularis is a striated type of domestic ruminant. कैसी है? Striated type है. However, in other structures, जैसे आप स्टमक पढ़ेंगे, ये पूरी organs, जितने भी organs हैं, जो सारे पढ़ेंगे, the tunica muscularis having the smooth muscle fiber. But here, in case of esophagus, the tunica muscularis has striated type of fiber. Striated type of fiber will be present over here. ठीक है. अब स्पीसीज वेरिएशन हम देखेंगे. क्या स्पीसीज वेरिएशन मिलेगा हमको? द लेंथ ऑफ esophagus कितना बताया था ऑक्स में? 90 सेंटीमीटर. 90 सेंटीमीटर बताया था. सर्वाइकल वॉज 40 एंड थोरेसिक वॉज 50, है ना. सर्वाइकल लेंथ वॉज 40 सेंटीमीटर एंड थोरेसिक लेंथ वॉज 50 सेंटीमीटर. नाउ इन केस ऑफ हॉर्स द लेंथ इज 140 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, है ना. 120 to 140 सेंटीमीटर. एंड हियर द सर्वाइकल पार्ट इज लॉन्गर देन द थोरेसिक पार्ट इन केस ऑफ हॉर्स. क्लियर? Now, one peculiar difference in esophagus of horse is this, that tunica muscularis, I told you, it is striated type. In case of horse, the patch of esophagus, which is traversing at the level of base of heart, that patch has a smooth type of fiber. That patch has a smooth type of fiber. Means the entire length of esophagus do not have the striated type of muscle fiber. Here the patch of esophagus which is traversing above the heart, that patch has smooth fiber in tunica muscularis. बताओ भाई, समझ में आया ये चीज? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है. अभी हमने ऑक्स में क्या पढ़ा? इन केस ऑफ ऑक्स द ट्यूनिका मस्कुलरिस इज striated type. मींस striated type of fiber are present in the entire length of esophagus. ठीक है. But in case of horse, the patch, the area of esophagus which is passing above the heart के ऊपर से जो एरिया गुजरेगा, the patch passing above the heart have smooth type of fiber in tunica muscularis. ठीक है. At that patch has smooth fiber. तो मतलब ये क्या हो गया? मिक्सिंग हो गया. जैसे आप हमारे में आप पढ़ते हैं
ह्यूमन में कैसा है? Tunica muscularis of esophagus. Which type of distribution of fiber is present in esophagus? Smooth. Anyone? कोई भी बताओ भाई. What is Ma'am, smooth type. Sara? Entire? Yes, ma'am. 1/3 portion, 2/3 portion actually. हाँ? 2/3 portion. हाँ, 2/3 पोर्शन कैसा है? हम वो स्मूथ है और 1/3 है जो वॉलंटरी है. स्टार्टेड है. ऊपर वाला पोर्शन है टुवर्ड्स pharynx area, that is striated type, and lower portion is smooth type in case of human being. ठीक है ना? यहाँ पर क्या है हॉर्स के केस में? The area, the patch of esophagus traversing above the heart, smooth fiber in tunica muscularis, and rest is striated type. Clear? बाकी इन दोनों में, डॉग में, पिग में, the esophagus is whole and length is striated type. ठीक है ना? अब अगर हम देखें यहाँ in case of dog the length is variable. Length variable क्यों है? क्योंकि size, breed wise size is different. हुआ अलग है, ग्रेट डेन अलग है, बुलडॉग अलग है. ठीक है ना? तो because of variation in breeds, that is why the length is also variable. ठीक है? One special feature is present in case of dog. What special feature? The esophagus has a constriction at its beginning. Constriction मतलब जो ल्यूमेन होगा, स्टार्टिंग में जो ल्यूमेन है वो क्या है? नैरो है. In the starting, there the lumen is narrow in case of dog. We can say the esophagus has constriction at its beginning. This is because of presence of dense submucosal glands. Submucosal gland अभी पढ़ी थी ना हमने. Esophagus has submucosal glands. Esophageal glands कहाँ पर होंगी? Submucosa में होंगी. और डॉग के केस में क्या है? In case of dog, at the beginning of esophagus, the submucosal glands are packed over here. That is why they are making the lumen narrow at its beginning. ठीक है? Now the mucosa is folded. सभी में folded है, ये तो बताया ही था. So this is all about the esophagus. Course of esophagus, relation of esophagus, clinical cases of esophagus, clinical condition of esophagus, and species variation. ठीक है? अब esophagus के बाद फिर हम अब next जो chapter होगा, that will be the rumen reticulum omasum abomasum. ठीक है? अब ये चीज तो आई थिंक अब बताने की जरूरत नहीं है. कंपाउंड स्टमक, सिंपल स्टमक, क्या भी जरूरी है? देखो हाँ, और एक बार फिर से सुन लो. ठीक है? देखो रूमिनेंट का मतलब क्या है? लार्ज रूमिनेंट और स्मॉल रूमिनेंट. लार्ज रूमिनेंट का मतलब होता है कैटल, बफलो. स्मॉल रूमिनेंट का मतलब क्या होता है? शीप एंड गोट. तो एक्चुअली कुछ डिफरेंसेस हैं लार्ज रूमिनेंट और स्मॉल रूमिनेंट में. इफ वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक इन लार्ज रूमिनेंट, certainly there are many differences in the anatomy of rumen reticulum omasum abomasum of cattle and of goat. दोनों में अंतर है, but vast. That is why we only focus the anatomy of large ruminant. पढ़ना तो हमें small ruminant के बारे में भी चाहिए, लेकिन हम उसको थोड़ा skip कर देते हैं कि भाई वैसे कोर्स कंटेंट ज्यादा है. अब लार्ज रूमिनेंट का अलग पढ़ेंगे, स्मॉल रूमिनेंट का अलग पढ़ेंगे. ठीक है? दैट इज व्हाई वी फोकस ऑन लार्ज रूमिनेंट. अभी गांठ बांध लेना है आपको. हमेशा कंफ्यूजन होने लगता है कि अब पिग का स्टमक कैसा है. पिग में और हॉर्स में कंफ्यूजन. डॉग का तो समझ में सबको जल्दी आ जाता है कि डॉग नहीं, डॉग का तो ह्यूमन जैसा है. पिग एंड हॉर्स ऑल्सो हैज मोनोगैस्ट्रिक. दे आर द मोनोगैस्ट्रिक. ठीक है ना? And these are the having the complex stomach. ठीक है? Compartment, 4 compartment of stomach are present in large ruminant. In pig,
in dog, in horse, they are monogastric animal. One stomach is present. है कि एक ही स्टमक में कुछ एरिया ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जैसे ह्यूमन में क्या है, द होल स्टमक इज ग्लैंडुलर टाइप, नो एरिया ऑफ नॉन ग्लैंडुलर रीजन। लेकिन यहां पर आपको मिलेगा पिग में और हॉर्स में द एरिया ऑफ नॉन ग्लैंडुलर रीजन। कंसेप्ट है, लेकिन मोनोगैस्ट्रिक, दे आर द मोनोगैस्ट्रिक, दे आर नॉट कंपाउंड स्टमक, दे डू नॉट हैव द कंपाउंड स्टमक। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। कंपाउंड स्टमक इन ruminants only, pig, dog, horse, they are monogastric animal. कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए, ठीक। जैसे हम कैमल में बोलते हैं, कैमल में कैमल हैज द कंपाउंड स्टमक, ठीक है ना, कैमल हैज द कंपाउंड स्टमक, ठीक है ना। लेकिन पिग में और हॉर्स दे आर द मोनोगैस्ट्रिक एनिमल, ठीक है। सो rumen, reticulum, omasum and abomasum, 4 compartments are there and they are present in abdominal cavity. अब हम इनका क्या पढ़ेंगे, इंडिविजुअल टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मीन्स फ्रॉम वेयर टू वेयर दे आर एक्सटेंडेड। देन व्हाट इज द परसेंटेज, मीन्स what are the if we consider the 4 compartment to a single one, then what is the percentage contribution of all the 4? बात समझ में आ रही मेरी? अगर हम चारों कंपार्टमेंट को 100% कंसिडर करेंगे, then rumen contribute 80%. 80% of volume, 80% of size is contributed by the rumen. 80% by rumen, 6 to 7% by omasum, 7 to 6 या 7 to 8% by the abomasum. मतलब omasum और abomasum बराबर है, 6 to 7%, 6 to 7%. And reticulum is contributing 5%. 80% rumen plus 5 reticulum, 85%. बचे कितने, 15 बचे. So either abomasum may be considered 7% and omasum as 8%. ठीक है ना, तो 7-8 का चलता है, ठीक है। So usually omasum and abomasum consider of equal size, 7 to 8% बोलते हैं, ठीक है। So 80% rumen, 5% reticulum, then 7 to 8% abomasum and 8 to 7% omasum, ठीक है। So this is the percentage of all the 4 compartment. The largest compartment is rumen, smallest compartment is reticulum. क्या समझ में आया? अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे 1 by 1. स्टार्ट करेंगे rumen से. So we will discuss all anatomy of rumen, इसकी डिग्रीज of surgical anatomy of rumen. ठीक है? So now any confusion up to here? किसी को कोई कंफ्यूजन अभी तक? नो मैम। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, जो है बुक आप लोग के पास है, जो भी चैप्टर मैंने पढ़ाया वो आप तुरंत पढ़िए, ठीक है। उससे क्या तुरंत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। शॉर्ट नोट में जो भी चीजें मैंने, जैसे आप ईसोफेगोटॉमी बताया, ट्रेक्योटॉमी, ट्रेकिस्टॉमी, इट इज नॉट रिटन इन बुक, कोर्स में नहीं लिखा है कुछ भी। आप, मैंने जो अभी बताया है, अभी आपको एकदम फ्रेश माइंड में याद होगा, तुरंत कॉपी में नोट डाउन कर लें, ठीक है। बिकॉज दीज टर्म्स मे बी आस्क्ड इन वाइवा वोसे, सम टाइम इन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन. So you must remember all the things, and they are not actually, yes, they are given in your practical